Hi there and welcome to GMAT by PhysicsWala, and in this particular session you and I will sit down together and practice the identify the assumption questions from critical reasoning, which is a very integral, very crucial part of our verbal reasoning section. So just to give you a quick recap, what exactly do we mean by an assumption? So we know that in an argument we happen to have a conclusion, and this conclusion is based on some premises. But then whenever an individual thinks and uses some premises to arrive at a conclusion, eventually while talking to somebody else, he may not go ahead and state all of those premises. So the premises that are left unstated are called assumptions. So typically an argument has a conclusion supported by some premises, and it may also have some assumptions. So if anybody asks us for what an assumption is, we'd simply tell them that an assumption is nothing but an unstated premise. And in every assumption based question, the paragraph gives you an argument. And in that argument, because the question has asked us for an assumption, we already know that there is an unstated premise available. So you would simply look for an answer choice that brings in some new information that is essential in order to arrive at the conclusion. And if you've already gone through the theory, then you know that we go ahead and use the negation test in order to pick up the right answer choice. So whenever in doubt, bring out negations and then resolve it. So let's go ahead and start our work together. Here is your question number 1. I want you to pause the video right now and solve this particular question. Once you've done solving it, come back, join me for a discussion. So your time begins now. Okay, so I hope that you have managed to solve this on your own. If you haven't, your learning from this question is actually going to be less. So let's start with the question stem. Which of the following is an assumption that enables the conclusion above to be properly drawn? Just one of those myriad ways in which we are asked to identify assumptions. So let's go ahead and look at the paragraph. According to the new office smoking regulations, only employees who have an enclosed office may smoke at their desks. So we are talking about some new ऑफिस स्मोकिंग रेगुलेशंस. तो भाई ऑफिस में स्मोकिंग से रिलेटेड कोई नई पॉलिसीज बनाई गई, कोई रेगुलेशन लाए गए हैं उसको कंट्रोल करने के लिए. अब ये रेगुलेशंस क्या बोलते हैं? ओनली एम्प्लॉयज हु हैव एन एनक्लोज्ड ऑफिस मे स्मोक एट देयर डेस्क्स. ओके, तो यानी कि अब कंपनी है, कंपनी में एम्प्लॉयज हैं. अगर एक एम्प्लॉय के पास अपना enclosed office है, then that employee may smoke. So ये एक रेगुलेशन का एक हिस्सा ये. अब दूसरी चीजों में क्या पता है? Virtually all employees with enclosed offices are at the professional level. I love seeing the quantifiers, है ना? So जितने भी enclosed office वाले लोग हैं, so if an employee happens to have an enclosed office, you know that he is at the professional level. What else do we know? And virtually all secretarial employees lack enclosed offices. So secretarial level पे है तो no enclosed office. So these are the three things that we know so far. Therefore, secretaries who smoke should be offered enclosed offices. तो ये therefore से बहुत आसानी हो गया, ये हमारा यहां पे आ गया conclusion. तो अब इसमें क्या assumption चाहिए? तो देखिए, we are basically saying that there are employees who are at professional level, they have enclosed office. There are employees at secretarial level, they do not have enclosed offices.
somebody with an enclosed office may smoke. May smoke is उसकी choice, उसकी मर्जी, उसको पीना है तो ऑफिस में सिगरेट पी ले, नहीं तो ना पिए. On the other hand, आपके पास अगर enclosed office नहीं है तो then you cannot smoke at your desk. और enclosed office किनके पास नहीं है? Secretarial employees के पास नहीं है. अब हम चाहते हैं नहीं नहीं यार, secretaries who smoke should be offered enclosed offices. तो यार इनमें भी तो लोग होंगे जो smokers हैं. And because they are smokers, they should be given enclosed offices. Why? Because then they will also be able to smoke at their desk. So यहाँ पे basic एक assumption, एक gap क्या निकल करके आ रहा है कि अगर कोई स्मोकर है तो irrespective of that smoker's level in an organization, वो प्रोफेशनल लेवल पे है या सेक्रेटेरियल लेवल पे है, they should have an equal opportunity to smoke at their desk. And in order to give that equal opportunity, हम क्या बोल रहे हैं यार, ये सेक्रेटरीज जो स्मोक करते हैं उनको भी एनक्लोज्ड ऑफिसेस दे दो, फिर ऐसा भेदभाव मत करो. ठीक है, तो वो गैप दिख ही रहा है ना, सबको सेम लेवल, जो स्मोक करते हैं तो सबको सेम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. लेट्स स्टार्ट विद ए. एम्प्लॉइज एट द प्रोफेशनल लेवल हु डू नॉट स्मोक should keep their enclosed offices. This is irrelevant to this particular argument. हमें यहां पर पैरिटी क्रिएट करनी है enclosed offices वाले स्मोकर्स और सेक्रेटरीज हु स्मोक उनके बीच में. हाँ, वो कंपैरिजन इसके बीच में नहीं है कि एनक्लोज्ड ऑफिस में प्रोफेशनल लेवल वाले लोग जो स्मोक करते हैं और जो नहीं करते हैं दोनों के पास ऑफिस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसका यहां से कोई लिंक नहीं है. फिर भी इफ यू आर अनश्योर तो नेगेट करके देख लो. एम्प्लॉइज एट द प्रोफेशनल लेवल हु डू नॉट स्मोक शुड नॉट कीप देयर एनक्लोज्ड ऑफिसेस. ऑपोजिट कर दिया. अब हमारा कंक्लूजन क्या है? सेक्रेटरीज हु स्मोक शुड बी ऑफर्ड एनक्लोज्ड ऑफिसेस. ये कंक्लूजन तो हम अब भी निकाल पा रहे हैं. व्हाट डज दैट टेल अस? दैट ए इज नॉट एसेंशियल. नेगेशन के बाद भी अगर आर्ग्यूमेंट का कंक्लूजन वैलिड है, निकल करके आ रहा है, तो मतलब ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एसेंशियल नहीं था, एंड दैट इज व्हाई दिस कैन बी रूल्ड आउट. बी पे चले. एम्प्लॉइज विद एनक्लोज्ड ऑफिसेज शुड नॉट स्मोक एट देयर डेस्क्स even though the new regulations permit them to do so. अब देखिए, देखने में बड़ा टेम्पटिंग लगेगा क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि यार पैरिटी होनी चाहिए यार सारे स्मोकर्स के पास, बट यहां पे कंक्लूजन क्या है? सेक्रेटरीज हु स्मोक शुड बी ऑफर्ड एनक्लोज्ड ऑफिसेज. हमारी डिमांड क्या है? सेक्रेटरीज जो स्मोकर्स हैं उनको भी आप एनक्लोज्ड ऑफिस दें. बी में हम क्या बोल रहे हैं? यार जो स्मोकर हैं एनक्लोज्ड ऑफिस वाले, उनसे भी एनक्लोज्ड ऑफिस ले लें. तो अगर उनसे भी हम एनक्लोज्ड ऑफिस ले रहे हैं तो इवन दे विल नॉट बी एबल टू स्मोक एट देयर डेस्क. तो सेक्रेटरीज को तो फिर एनक्लोज्ड ऑफिस देने का सवाल ही खत्म हो जाएगा. सो एक तरह से ये इनडायरेक्टली वीकन कर रहा है हमारे आर्ग्यूमेंट को. दिस इज टेकिंग द रीजन अवे फ्रॉम द आर्ग्यूमेंट फॉर गिविंग द सेक्रेटरीज हु स्मोक एन एनक्लोज्ड ऑफिस. हाँ, सो हमें पता है कोई भी assumption कभी भी ऐसे वीकन नहीं करती है, स्ट्रेंथन करना चाहिए. सो बी ऑल्सो गेट्स रूल्ड आउट. लेट्स हैव अ लुक एट सी. एम्प्लॉइज एट द सेक्रेटेरियल लेवल शुड बी अलाउड टू स्मोक एट देयर डेस्क even if they do not have enclosed offices. Okay, once again this brings in that element of parity. लेकिन देखिए हमारा कंक्लूजन क्या है? इन्हें enclosed offices मिलने चाहिए. सी बोल रहा है यार एनक्लोज्ड ऑफिस नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, कम से कम डेस्क पे स्मोक करने का राइट ही दे दो. हाँ, बट डज इट गो ऑन टू सपोर्ट द फैक्ट दैट दे शुड बी ऑफर्ड एनक्लोज्ड ऑफिसेस? नो, इट डज नॉट, एंड देयरफॉर वी कैन रूल इट आउट. आप चाहें तो नेगेट कर लें. यहां पे लिख दीजिए एम्प्लॉइज एट द सेक्रेटरी लेवल शुड नॉट बी अलाउड टू स्मोक. ऑपोजिट करेंगे तो भी एक कंक्लूजन आ ही जाएगा. वो इनफैक्ट दे आर नॉट अलाउड टू स्मोक एज इट इज at their desk because they lack an enclosed office. Okay, D पे चले. The smoking regulations should allow all employees who smoke an equal opportunity to do so, regardless of an employee's job level. So ये क्या बोल रहा है कि रेगुलेशन ऐसी होनी चाहिए जो सारे स्मोकर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, जॉब लेवल ना देखें. यानी कि अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे हैं, एनक्लोज्ड ऑफिस है, आप डेस्क पे पी पा रहे हैं, तो इनके पास भी वो सेम चीज होनी चाहिए, तभी तो हम एनक्लोज्ड ऑफिसेस डिमांड कर पाएंगे. लेट्स ट्राई नेगेटिंग दिस. द स्मोकिंग रेगुलेशंस शुड नॉट अलाउ
all employees who smoke an equal opportunity to do so regardless of an employee's job level. So the moment you negate it, आप क्या बोल रहे हैं, रेगुलेशंस को इक्वालिटी देने की कोई जरूरत नहीं है, जॉब लेवल अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग कर सकते हैं, और अगर ये ट्रू है तो फिर तो ये एनक्लोज्ड ऑफिस की डिमांड कर ही नहीं पाएंगे हम उस केस में तो. सो दैट मेक्स डी एब्सोल्युटली नेसेसरी. तो इसलिए आप डी को रनिंग में रखें. ई अभी और बचा है, फिर उसके बाद we'll go ahead and arrive at a definitive take. E, the smoking regulations should provide equal protection from any hazards associated with smoking to all employees who do not smoke. Irrelevant to this argument. हैजर्ड से प्रोटेक्ट करना उनको जो स्मोक नहीं करते, जबकि हमारा कंक्लूजन क्या है, यार इनको एनक्लोज्ड ऑफिसर्स दिलवाओ यार, उससे कोई लिंक ही नहीं है. सो इवन दिस गेट्स रूल्ड आउट. सो द बेस्ट आंसर फॉर अस इन दिस क्वेश्चन is going to be option D. So that's your question number 1. Let's go ahead and get into our next question. Once again, pause the video here, answer the question, come back, and then we'll discuss it. Welcome back, and let's dive into the question. Which of the following is an assumption of the economist's argument? तो चलिए देखें इकोनॉमिस्ट का आर्ग्यूमेंट है क्या. The most economically efficient way to reduce emissions of air pollutants is to tax them in proportion to the damage they are likely to cause. तो आपको पता है एयर पॉल्यूटेंट्स जो एयर पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूशन करते हैं. अब ये सेंटेंस हमें क्या बताता है कि इफ यू वांट टू रिड्यूस द एमिशंस ऑफ सच पॉल्यूटेंट्स, आप चाहते हैं ऐसे पॉल्यूटेंट कम रिलीज किए जाएं, तो उसका सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली एफिशिएंट तरीका, देखो इकोनॉमिकली एफिशिएंट मतलब इकोनॉमी में लीस्ट कॉस्ट इन्वॉल्व करके मैक्सिमम रिजल्ट ले पाए, तो वो तरीका बेसिकली क्या है, प्रोपोर्शनेट टैक्सेस. आप भाई लेटस से मैं 1 यूनिट पॉल्यूटेंट रिलीज करता हूं, तो आप मुझसे ले रहे हैं 1000 रुपए. कोई और अगर 10 यूनिट पॉल्यूट करता है तो आप उससे चार्ज कीजिए टैक्स 10,000 रुपए. और अगर कोई 100 यूनिट्स का पॉल्यूटेंट्स रिलीज करता है तो आप उससे 100,000 यानी कि 1 लाख रुपए का टैक्स चार्ज कीजिए. सो ये सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली एफिशिएंट है, क्योंकि इससे पॉल्यूटर को क्या होगा, मतलब देखो तो इसमें एक वो आ रही है ना अजम्पशन के यार polluters would hate paying additional money, so they try to minimize it. उसको पता है कि अगर उसने 100 यूनिट से 90 यूनिट्स कर दिया तो 10,000 बचा पाएगा टैक्स के, है ना. सो दिस विल मेक देम पॉल्यूट लेस. और कैपिटलिज्म में एट द एंड ऑफ द डे a tax saved is basically profit, and profit motive is what would drive a lot of businesses. It's not a dirty word as some of us at times think, profit. So सबसे इकोनॉमिकली एफिशिएंट तरीका ये रहा. बट इन कंट्री वाई many serious pollutants are untaxed and unregulated. तो एक कंट्री है जिसमें कुछ लोग बहुत सीरियस पॉल्यूटेंट्स हैं. सीरियस पॉल्यूटेंट मतलब दे रिलीज अ लॉट ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन द एयर. दे आर अनटैक्स्ड. ऑन टॉप ऑफ दैट दे आर ऑल्सो अनरेगुलेटेड. अनरेगुलेटेड मतलब आप देख भी नहीं रहे उनको, आप कोई और पॉलिसी से भी उन पे कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप चेक भी नहीं कर रहे कि कितना एयर पॉल्यूशन कर रहा है. वी जस्ट नो दैट दे आर सीरियस पॉल्यूटेंट्स. हाँ, तो होना क्या चाहिए, इकोनॉमिकली एफिशिएंट तरीका है प्रोपोर्शनेट टैक्सेस लगा दो. तो इन पे भी इनको रेगुलेशन के नेट में लाएं, टैक्सेस लगा दे. एंड पॉलिसी मेकर्स स्ट्रांगली अपोज न्यू टैक्सेस. ओ बट आप इन पे टैक्सेस लगा नहीं पाएंगे क्योंकि इस कंट्री में जो पॉलिसी मेकर्स हैं दे आर अगेंस्ट न्यू टैक्सेस. सो फार दीज गाइज आर अनटैक्स्ड. अब इनको टैक्स में लाने के लिए आपको फिर नए टैक्स लगाने पड़ेंगे ना. So they are very reluctant to bring in new taxes for air pollution. Therefore, the best way to achieve a reduction in air pollutant emissions in country Y would be to institute fixed upper limits on them. Okay, तो अब ऑथर क्या बोल रहा है कि यार देखो बेस्ट तरीका तो ये है, बट ये वाला तरीका इस कंट्री में यूज नहीं हो पाएगा, तो फिर चलो नेक्स्ट बेस्ट पे चले जाते हैं. तो फिर नेक्स्ट बेस्ट तरीका क्या है, पुट अ फिक्स्ड अपर लिमिट कि भाई नोबडी विल
pollute beyond 30 यूनिट्स। तो इसमें एक बड़ी क्लियर कट अजम्पशन मुझे यहां पे दिख रही है कि इंस्टीट्यूटिंग फिक्स्ड अपर लिमिट्स विल रिड्यूस ओवरऑल एमिशंस इन कंट्री वाई। बट देन जरूरी नहीं है ना, मतलब सोचो कंट्री वाई में लेटेस्ट से अभी आपके पास में ना 1000 यूनिट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन है और आपके पास है 10 इंडस्ट्रीज जो पॉल्यूट करती हैं, ठीक। अब लेटेस्ट से मैंने एक अपर सीलिंग डाल दी, अपर लिमिट डाल दी कि आप ना साल में यू कैन नॉट रिलीज मोर देन 40 यूनिट्स। तो अब आफ्टर दिस अपर लिमिट माय एयर पॉल्यूशन विल ड्रॉप डाउन टू व्हाट, 400 units. But what if my upper limit is not 40? What if my upper limit is 100? उस केस में will it reduce it? That's what I meant by we are assuming that the upper limits are going to be such that they will reduce the overall pollutant level. Right? कि हर एक इंडस्ट्री जो पॉल्यूट करती है उसके साथ अगर आप उस अपर लिमिट को मल्टीप्लाई करें तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो अभी के एयर पॉल्यूशन से कम होगा। ये एक अजम्पशन हमारे पास यहां पर है, ठीक। और बाकी चलिए ऑप्शंस के साथ काम करते हैं, वील सी व्हाट वर्क्स। ऑप्शन ए, पॉलिसी मेकर्स इन कंट्री वाई अपोज ऑल न्यू टैक्सेस इक्वली स्ट्रांगली रिगार्डलेस ऑफ एनी बेनिफिट्स दे में प्रोवाइड। तो चलो नेगेट करते हैं इसको। Policy makers in country Y do not oppose all new taxes equally strongly. तो यानी कि कुछ नए टैक्सेस ऐसे हैं जिनके दे आर वेमेंटली अगेंस्ट और कुछ नए टैक्सेस हैं दे आर ओनली माइल्डली अगेंस्ट। फॉर एग्जाम्पल, लेटेस्ट से ऐसा हो सकता है ना कि व्हेन इट कम्स टू टैक्सेस ऑन पॉल्यूशन दे आर वेमेंटली अगेंस्ट, जबकि टैक्सेस ऑन लेटेस्ट से न्यू कार्स पे नए टैक्स लगाना दे कुड बी मॉडरेटली अगेंस्ट देम। अगेंस्ट तो है बट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील नहीं करते वो इन टैक्सेस को लेकर के। सो इफ दिस इज ट्रू तो दे आर नॉट इक्वली स्ट्रॉन्ग अबाउट न्यू टैक्सेस, बट माई कंक्लूजन इज स्टिल वैलिड। अगर ये अजम्पशन होता, अजम्पशन का टेस्ट क्या है? अजम्पशन का टेस्ट ये नहीं है कि स्ट्रेंथन करे, अजम्पशन का टेस्ट ये है कि नेसेसरी हो, उसके बिना कंक्लूजन आ ही नहीं पाए। तो हमने जब इसका ऑपोजिट लिया तो एक तरह से अगर ये अजम्पशन होती तो हमने इसको इस आर्ग्यूमेंट से बाहर निकाल लिया। अब बाहर निकालने के बाद कंक्लूजन शुड बिकम इम्पॉसिबल, बट ऐसा तो नहीं हो रहा यहाँ। हाँ, एंड देयरफॉर ए इज नॉट आवर assumption. Let's look at B. Country Y's air pollutant emissions would not fall significantly if they were taxed in proportion to the damage they are likely to cause. यार इसमें देखो, इसमें look at the first sentence. What do we know? The most efficient way is to tax them in proportion to the damage they are likely to cause. B says that नहीं, अगर ये कर भी देंगे ना आप तो भी they will not fall significantly. But is it an assumption? Assumption is about this other method turning out to be the best way. It is not about taxes. So once again, it may go on to strengthen the argument overall, but it is not something that is necessary. And once again, if you want to check that out, आप negate कर दें, would fall. Country-wise air pollutant emissions would fall significantly if they were taxed. तो भी आप यहाँ पे अब आपको पता चल गया कि नहीं टैक्सेस आर एक्चुअली इकोनॉमिकली वेरी एफिशिएंट, लेकिन उसके बावजूद अब नए टैक्सेस तो लगाए ही नहीं जा सकते ना। सो जब टैक्सेस वाला रूट आपके लिए ओपन ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप ये दूसरा रास्ता देखेंगे। सो देयरफॉर यू सी इट इज नॉट नीडेड। सी, policy makers in country Y strongly favor reduction in air pollutant emissions. Okay, but it is not about whether they favor reduction in pollutant emissions or not. It is about whether they favor one method over the other or not. Fundamentally क्या है? दो तरीके हमें यहाँ पे दिए गए हैं, टैक्स लगा लो या फिर अपर लिमिट फिक्स कर लो। तो ये बोल रहा है कि यार टैक्स नहीं लगाएंगे ये लोग, तो अपर लिमिट फिक्स करने से ही आप इसे कम कर पाएंगे। सो अब वो वेदर दे स्ट्रांगली फेवर रिडक्शंस और नॉट इज इररेलेवेंट फॉर दिस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट।
You can try a negation test and you would arrive at the same answer. Okay, option D, country-wise policymakers believe that air pollutant emissions should be reduced with maximum economic efficiency. ये तो argument को weaken कर देगा यार. कैसे? What is the most economically efficient way of reducing air pollutants? Tax them in proportion to the damage. So if they believe in maximum economic efficiency, then they should side with taxes, but they are not siding with the taxes. तो ये तो contradictory हो गए. And anything that contradicts your argument or premises will obviously not be able to act as an assumption. Assumptions हमेशा support ही देंगे, necessary वाली support देंगे, उसके बिना जा नहीं पाएंगे आप conclusion तक, but है तो support. Let's look at E. Policymakers in countrywide do not oppose setting fixed upper limits on air pollutant emissions as strongly as they oppose new taxes. ये हो सकता है, देखो, they strongly oppose new taxes, इसलिए they are out of question. फिर हम बोल रहे हैं तो फिर upper limits लगा दो, तो we are assuming that they are going to be okay with instituting fixed upper limits. तो अब E सीधा सीधा ये नहीं बोल रहा था they are okay, but ये बोल रहा है they do not oppose setting these upper limits on air pollution emissions as strongly as they oppose new taxes. तो अगर ये as strongly against नहीं है तो मतलब कम अगेंस्ट है. हो सकता है बहुत ही कम अगेंस्ट हो सकता है इनका ऑपोजिशन इज वेरी माइल्ड एंड वीक एंड दे कैन बी रेडिली कन्विंस्ड टू डू सो. सो इसलिए ये चलेगा. इसमें आप नेगेट करें, अगर आप इसको बोलें कि दे अपोज फिक्स्ड अपर लिमिट्स एज स्ट्रांगली एज दे अपोज न्यू टैक्सेस, तो फिर तो जब ये वाला तरीका शूट डाउन हुआ इस वजह से because they oppose it, तो ये वाला भी फिर शूट डाउन हो ही जाएगा. So that tells you that E is absolutely necessary for us and therefore that is going to be our answer to this particular question right here. So with that, let us move over to our question number 3. So why don't you go ahead, pause the video here and then come back for a discussion. Ready? Let's start. So, the claim about quality made above rests on a questionable presupposition that. तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टेम को समझ लिया जाए. What do you understand by a presupposition? A presupposition is nothing but an assumption. हाँ, इसके साथ यहाँ पे questionable और लगाया गया, which shows that the person who created this question stem thinks that the assumption that is involved in this argument may not be right, may be iffy, may be flawed, but हमें तो at the end of the day assumption ढूंढनी है. हाँ, अगर एक से ज़्यादा assumption हुए तो वो वाला assumption जिसको देख करके लगे कि नहीं नहीं यार ये तो ठीक बात नहीं है, वो वाली प्रेफर कर लेंगे, वो वाली prioritize कर लेंगे. तो चलिए देखें. So what do we have here? Fast cycle time is a strategy of designing a manufacturing organization to eliminate bottlenecks and delays in production. तो ये फर्स्ट सेंटेंस क्या कर रहा है? फर्स्ट सेंटेंस हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के बारे में जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज की जाती है. वी आर कॉलिंग इट फास्ट साइकिल टाइम. और इस स्ट्रैटेजी का गोल क्या है? To eliminate bottlenecks and delays in production. Now, what do you understand by a bottleneck? So, एक manufacturing process में बहुत अलग अलग steps हो सकते हैं, right? तो उनमें से कुछ steps ऐसे होते हैं जहाँ पे आके आपकी output relatively slow हो जाती है. For example, let us say हमें केक बनाना है, ठीक है? तो केक के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें सारे इंग्रेडिएंट्स, ओके, वी नीड टू मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स. आफ्टर दैट वी नीड टू बेक द केक. देन we need to maybe write something on top of that cake and then pack it in a box. Let us say 4 stages है. तो अब at the end of the day, unless all the 4 stages are taken care of, we cannot deliver the cake to a customer. अब इसमें let us say mixing the ingredients takes 7 minutes.
baking the cake takes 20 minutes, writing takes 2 minutes, packing also takes 2 minutes. तो आप देख रहे हैं मिक्स तो 7 मिनट में हो रहा है, लिखा भी 2 मिनट में जा रहा है, पैक भी 2 मिनट में हो रहा है, लेकिन बेकिंग में 20 मिनट लग रहे हैं. तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इफ यू नोटिस, इट इज टेकिंग 31 मिनट. अब इसमें कैन वी मेक इट फास्टर? क्या हम ये राइटिंग वाले टाइम को 2 मिनट की जगह 1 मिनट कर दें? कर भी देंगे तो क्या होगा, केक तो 20 मिनट के बाद ही मिलेगा ना. हाँ, तो एट द एंड ऑफ द डे हमारा सबसे ज्यादा टाइम तो यहाँ जा रहा है. तो अगर हमने कहीं ना कहीं यहाँ पे टाइम कम कर दिया, ये बॉटल नेक है. दिस इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम. बाकी चीजें फास्ट मूव कर सकती थी. हाँ, तो ये बॉटल नेक हो गया हमारा. तो ऐसी चीजें जहां पे आकर के थोड़ा प्रोसेस स्लो हो जाता है, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, और उसकी वजह से पूरा मैन्युफैक्चरिंग डिले होती है, आप उसे बॉटल नेक बोल सकते हैं. तो फास्ट साइकिल टाइम इज सपोज टू एलिमिनेट बॉटल नेक्स. जहां भी आप अटकते हैं वो आपका अटकना दूर कर देता है. ना नॉट ओनली डज इट स्पीड अप प्रोडक्शन, स्पीड अप तो हमें दिख ही रहा है, बट इट ऑल्सो अश्योर्स क्वालिटी. क्वालिटी कैसे बढ़ेगी यार? हमने प्रोसेस को फास्ट किया, क्वालिटी कैसे इंप्रूव हो रही है देखते हैं. द रीजन इज दैट, सो द मोमेंट यू सी दिस, आपको पता है इसके बाद प्रेमिस आएगा. सो द रीजन इज दैट द बॉटलनेक्स एंड डिलेज कैन नॉट बी एलिमिनेटेड unless all work is done right the first time. ठीक. सो अगर सारा काम पहली बार में सही नहीं किया तो बॉटलनेक एलिमिनेट नहीं होंगे. एफसीटी बॉटलनेक एलिमिनेट करता है, तो यानी कि वो ये भी इंश्योर करता है कि सारा काम सही टाइम पे हो, सारा काम सही तरीके से हो, इज डन राइट. तो कहीं ना कहीं इसमें एक अजम्पशन आ रही है दैट व्हेन थिंग्स आर डन रॉन्ग दे कॉज अ बॉटलनेक. कि कहीं ना कहीं चीजें अगर सही नहीं होती, अगर उनकी क्वालिटी एडवर्स है, तो वो बॉटलनेक क्रिएट करती है. इसीलिए जब आप बॉटलनेक्स हटाते हैं तो क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाती है. राइट. सो लेट अस लुक एट आवर ऑप्शन. ए सेज any flaw in work on a product would cause a bottleneck or delay and so would be prevented from occurring on a fast cycle production line. So let's break it down. Any flaw would cause a bottleneck or delay. इसको negate कर दे. बोले नहीं, it's not necessary for every flaw. So any flaw is basically all the flaws, every single flaw. So अगर मैं बोलूं कि नहीं नहीं यार, हर एक फ्लॉ जरूरी नहीं है कि बॉटलनेक कॉज करे, तो एफसीटी क्या करता है? बॉटलनेक दूर करता है. अगर एक फ्लॉ ऐसा था जिसने बॉटलनेक कॉज किया, तो जिस प्रोसेस से बॉटलनेक दूर हुआ वो प्रोसेस फ्लॉ भी दूर करेगी. पर अगर कोई फ्लॉ ऐसा था जिसने कोई बॉटलनेक कॉज ही नहीं किया, तो एफसीटी तो बॉटलनेक हटा रही है ना, तो क्या वो ये फ्लॉ ठीक करेगी? नहीं. तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि एफसीटी ऑल्सो अश्योर्स क्वालिटी, then it means that everything that affects the quality also acts as a bottleneck. तो फर्स्ट हाफ तो चाहिए हमें, ये नेसेसरी है. इसको जैसे ही नेगेट करेंगे वैसे ही हम ये नहीं बोल सकते कि एफसीटी अश्योर्स क्वालिटी. दैट्स द कंक्लूजन, राइट? एफसीटी स्पीड्स अप प्रोडक्शन एंड ऑल्सो, बट इट ऑल्सो अश्योर्स क्वालिटी. हाँ, और इसमें क्वेश्चन स्टेम हमें स्पेसिफिकली क्वालिटी वाले पार्ट पे फोकस करने को बोल रहा है, तो मैं इसीलिए इसको हाईलाइट करके बैठा हूं. एंड सो वुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम अकरिंग ऑन अ फास्ट साइकिल प्रोडक्शन लाइन. एब्सोल्युटली यस. सो दिस इज नेसेसरी. लेट्स लुक एट बी. The strategy of fast cycle time would require fundamental rethinking of product design. देखो, what exactly is product design? Product design is how a product is made. For example, see, I am wearing this sling right now. This sling has a particular design. It has a hole for my thumb to come out. There is a rigid strip of metal here that prevents my wrist from moving forward. There are two rigid strips on the sides to prevent my hand from moving backwards, and then there are these straps etc. to keep it secured. So a fundamental rethink of product design will be where you think of, यार ये इसी जगह जाना है, यही मटेरियल यूज करना है, ये स्ट्रैप्स इसी तरह से इन्हीं चीजों के जाने हैं. तो यहां तो आप बॉटल नेक्स हटा रहे हैं. बॉटल नेक्स क्वालिटी की वजह से
फ्लॉज की वजह से कॉज होते हैं तो बॉटल नेक हटेंगे तो क्वालिटी भी तो वो फ्लॉज भी हट जाएंगे तो क्वालिटी आ जाएगी उसमें. Why is it necessary for us to rethink product design? Even if you do not, even if you keep the product design the same, you can still go ahead and remove bottlenecks. So ये necessary नहीं है, हटा देते हैं. See, the primary goal of the organization is to produce a product of unexcelled quality rather than to generate profits for stockholders. तो देखो C में comparison क्या हो रहा है? Profit versus क्वालिटी का, और ये बोल रहे हैं कि क्वालिटी इज प्रियोरिटाइज्ड ओवर प्रॉफिट्स. बट देन यहां पे हाउ वुड फास्ट साइकिल टाइम अश्योर क्वालिटी? ऑर्गेनाइजेशन चाहती है क्वालिटी, बट हाउ इज फास्ट साइकिल टाइम कनेक्टेड टू अश्योरिंग क्वालिटी? वो तो नहीं मिल रहा हमें, सो ये भी हटा दें. डी, fast cycle time could be achieved by shaving time off each of the component processes in production cycle. भाई पहले कोई चीज में आप 120 सेकंड लगाते थे, 10 सेकंड बचा लिए. इसी तरह किसी और स्टेज पे 10 सेकंड बचा लिए, किसी तीसरे स्टेज पे 10 सेकंड बचा लिए. पर उससे होगा क्या? उससे क्वालिटी कैसे अश्योर होगी? ये तो नहीं पता चल रहा हमें. तो क्वालिटी वाला कनेक्शन मिसिंग है. लेट्स रूल इट आउट. ई, fast cycle time is a concept in business strategy that has not yet been put into practice in a factory. यार अभी प्रैक्टिस में है कि नहीं, that's irrelevant. Will it assure quality? That's something that we are concerned about. So obviously अगर ये अभी तक प्रैक्टिस में है ही नहीं तो ये तो उल्टा एक तरह से वीकन कर सकता है इस आर्ग्यूमेंट को. यार ये सब हाइपोथेटिकल बातें हैं, पक्का नहीं है. तो एनीथिंग विच इज अ पोटेंशियल टू वीकन एंड इज नॉट नेसेसरी, वो असम्पशन तो डेफिनेटली नहीं होगा. सो आप ऑप्शन ई एलिमिनेट कर सकते हैं. सो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 3. विद दैट लेट्स डाइव इनटू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. क्वेश्चन 4. Pause the video here, answer the question, and then come back for a discussion. Let's see. Which of the following is an assumption on which the argument depends? तो चलिए argument पे चलते हैं. A newly discovered painting on wooden panel by Michelangelo must have been completed after 1507, but before 1509. Cannot have been painted earlier because of this, because of that. Okay. So इस पूरे argument में ये है हमारा conclusion. The first sentence. It's the first sentence which is our conclusion. क्या कर रहा हूं? So, एक पेंटिंग है, हम बोल रहे हैं यार ये 1507 के बाद और 1509 के पहले पेंट की गई. ऑन व्हाट बेसिस आर वी सेइंग दिस? सो उसके लिए ये जो सेंटेंस है, दिस एक्ट एज आर फर्स्ट प्रेमिस. दिस हेल्प्स अस प्रूव दैट द पेंटिंग कुड नॉट हैव बीन पेंटेड प्रायर टू 1507, क्योंकि जो कॉइन दिखाया है पेंटिंग में वो मिंट ही 1507 के बाद हुआ, तो ऑब्वियसली पहले नहीं हो सकता. यहां पे एक अजम्पशन क्या है कि पीपल बिकम अवेयर ऑफ अ कॉइन्स डिजाइन ओनली आफ्टर इट इज मिंटेड. अगर डिजाइन पहले से पता हो तो फोटोग्राफ में नहीं आएगा वो कॉइन, पेंटिंग में तो आ ही सकता है ना. आफ्टर ऑल यू जस्ट क्रिएटिंग दैट डिजाइन बाय हैंड. और उसके बाद ये जो नेक्स्ट पार्ट है, ये दिस गोज ऑन टू प्रूव why it could not have been painted after 1509. So it cannot have been painted after 1509 because it contains a pigment. Pigment is basically a color that Michelangelo is known to have abandoned when a cheaper alternative became available in that year. So pigment is color प्रोड्यूस करने के बाद तरीके होते हैं ना. मान लो आपको पेंटिंग में कलर करना है, आप क्रेयॉन्स यूज कर सकते हैं, स्केच पेन यूज कर सकते हैं. ऐसी थोड़ी और फैंसियर चीजें आती हैं विच कैन गिव यू ब्राइटर कलर्स और डिफरेंट ह्यूज, डिफरेंट टोन्स, और वो किस मटेरियल से बनते हैं उस पर डिपेंड करता है. तो एक पर्टिकुलर कलर इस पेंटिंग में यूज हुआ, वो जिस मटीरियल से वो कलर प्रोड्यूस किया जा रहा था, वो मटीरियल 1509 के बाद माइकल एंजेलो ने यूज करना बंद कर दिया था, क्योंकि उसको उसी कलर को दिखाने के लिए एक सस्ता ऑल्टरनेटिव मिल गया था. तो चलिए अब देखते हैं. ए, नो स्टॉक्स ऑफ द अबैंडन्ड पिगमेंट एग्जिस्टेड आफ्टर 1509. हटा दे, नेगेट कर लो, थे अवेलेबल यार, बट माइकल एंजेलो नहीं यूज कर रहा था क्योंकि उसको चीपर ऑल्टरनेटिव मिल गया था. तो हम ये थोड़ी बोल रहे हैं अवेलेबल नहीं था, ये यूज करना बंद कर गया था. बी,
Michelangelo did not work on the painting over the course of several years. नेगेट करते हैं. अगर हम ये बोलें कि Michelangelo worked on the painting over the course of several years, तो इससे 1507 से पहले की नहीं है ये तो बोल पाएंगे, बट 1509 से पहले की है ये नहीं बोल सकते. हो सकता है पेंटिंग पे काम चलता रहा हो. अब यार आपने एक पिगमेंट यूज करना शुरू कर ही दिया, वो पेंटिंग कंप्लीट नहीं हुई तो उसमें थोड़ी ना दूसरी चीजें डाल दोगे. तो इससे अगर ये ट्रू है तो हम ये नहीं बोल सकते कि इट इज बिफोर 1509. तो ये नेसेसरी है हमारे लिए. तो चलो ये रखते हैं एक बार. सी, द कॉइन डिपिक्टेड इन द पेंटिंग वाज नोन टू जनरल पब्लिक इन 1507. Okay, so what? Let us say it was not known to general public in 1507. So, as long as it was known to Michelangelo, it would work, and he may not be a part of general public. In fact, we know he wasn't. तो ये necessary नहीं है. D, the wooden panel on which the painting was executed cannot be tested accurately for age. आउट ऑफ स्कोप, इररेलेवेंट. देखो इस आर्ग्यूमेंट में हम क्यों बोल रहे हैं ये डेट्स, इसका रीजन है प्रेजेंस ऑफ अ कॉइन एंड प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट. इज इट कनेक्टेड विद द एज ऑफ द वुडन पैनल? नो. तो ये इस आर्ग्यूमेंट के साथ रिलेटेड फैक्ट ही नहीं है. ई, Michelangelo's painting style did not change between 1507 and 1509. नेगेट कर देते. अच्छा, इट डिड चेंज. भाई चेंज हुआ था तो पेंटिंग तो अभी भी इन्हीं 2 सालों के बीच की रही हो सकती है ना. सो दैट टेल्स यू दैट इवन दिस इज नॉट नेसेसरी, एंड विद दैट वी कैन देन zero in on B now that the rest of the options are getting eliminated. And if you want to discuss these further, you can obviously reach out to me in our Telegram group, where I would love to hear from you and your requirements so that we can level it up and take it forward. And before I sign out, find a way, not an excuse. So whether you're getting these questions right today, wrong today, does not matter. We just need to continue to work hard so that we are able to reach the right answer every single time. And that's it for this particular session. I'll see you in the next one.